السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لیکچر مسجد پر چل رہے ہیں اور آج اسی سیریز کا لیکچر نمبر 4 ہے، اور اس لیکچر میں آپ دوستوں سے میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 21 پر بات کرنا چاہوں گا۔ آپ میں سے وہ دوست جنہوں نے پہلے تینوں لیکچرز کا جائزہ نہیں لیا، ان کے لنکس میں ڈسکرپشن میں لگا رہا ہوں، وہاں جا کر لنک پر جائیں اور جائزہ لیں اور اپنی قیمتی آراء بھی پیش کریں کومنٹ کی صورت میں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ لیکچر نمبر 2 میں آپ سے میں نے شیئر کیا تھا کہ ہمارے عام پبلک اور ہمارے مذہبی پیشوا یہ کہتے ہیں کہ اسم مکان ہو تو یہ عمارت یا جگہ یا کمرہ یا کسی کوٹھڑے کو کہا جاتا ہے، جبکہ اس لیکچر میں الکتاب المبین سے تمام اسم مکان والی آیات آپ سے میں نے شیئر کی تھی۔ ان کے مطابق مکانہ، مکانی، مکانو، مکانن جہاں بھی آیات میں آیا ہے وہ کسی عمارت یا کمرے یا زمین پر کسی خاص جگہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 3 میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقین وہ افراد ہیں جو ساتھ غائب کو مانتے ہیں۔ ظاہر ہے جب غائب ہے تو الکتاب المبین میں جو مسجد لفظ آیا ہے یا جو بھی ہے وہ غائب ہے، اور ہمیں ہمارے جو عام پبلک ہے یا مذہبی پیشوا انہوں نے کہا جی یہ عمارت ہے، یعنی کہ یہ جتنے بھی ہیں ہمارے قرآنسٹ دوست ہیں یا عام پبلک ہے یا مذہبی پیشوا ہے، وہ مسجد کو غائب کے ساتھ ایمان ہی نہیں رکھ رہے کتاب میں، جبکہ کتاب میں جو متقین ہیں وہ غائب کے ساتھ ایمان رکھنا ہے۔ دوستو لیکچر کی جانب واپس آتے ہیں تو سورہ الکہف کی آیت نمبر 21 کا مروجہ ترجمہ میں آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں، اس پر کچھ معلومات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لہٰذا ترجمے میں جتنی بھی بریکٹس ہیں دیکھیں میں نے اسکرین پر لگایا ہے، یہ بریکٹس میں جو لکھا ہے یہ کسی بھی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اپنی جو ہے مینا کاری کی گئی ہے مترجمین کی طرف سے۔ لہٰذا ترجمہ میں لکھا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تھا کہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے جو لکھا ہے قیامت اس کے آنے میں، اب آنے میں جب لکھ دیا ہے نا تو پورا جملہ ہی بدل گیا ہے۔ ہمارے پیارے مترجمین نے الساعۃ کے معنی قیامت کیے ہیں، جبکہ اس کے معنی قیامت نہیں ہے، بلکہ قیامت تو الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے۔ الساعۃ کے معنی قیامت ہیں تو پھر لفظ قیامت کے کیا معنی ہوں گے وہ معنی بتا کر میری رہنمائی کر دے۔ لہٰذا یہاں پر ساعت کے معنی جو ہیں وہ گھڑی یا وقت کے ہیں یا خاص لمحے کو کہا جائے گا، لیکن یہاں الکتاب المبین کی آیت جو کہ سورہ الکہف کی 21 ہے، اس میں اس کے معنی قیامت کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پورا جملہ اور پورا جو انوائرمنٹ جو بن رہا ہوتا ہے وہ اسی کا یہ ترجمہ کر کے بیڑا گرک کر دیا جاتا ہے۔ دوستو مزید ہم مروجہ ترجمہ دیکھتے ہیں تو لکھتے ہیں جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا تم ان پر ایک عمارت بنا دو۔ ان کے اس ترجمہ سے یہ ثابت ہوا کہ ایک عمارت لوگ اصحاب الکہف پر بنانے کا کہہ رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس آیت پر عمل کرو تو آپ اصحاب الکہف پر عمارت کیسے بناؤ گے؟ کیونکہ لوگ تو عمارت گارے مٹی کی
इमारत को समझते हैं, जबकि इस तर्जुमा के मुताबिक तो इमारत असहाब अल कहफ पर ही बननी है, क्योंकि आयत पर अमल तो करना ही करना है और असहाब अल कहफ पर इमारत बनाई जाएगी। मजीद हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि तारीख से मंसूब करके कि नबी करीम ने हर आयत पर अमल करके दिखाया। अगर अमल करके दिखाया है तो जाहिर है उन्होंने असहाब अल कहफ पर मस्जिद भी बनाई होगी और उनके ज़माने में असहाब अल कहफ मौजूद भी होंगे। आप देखिए, उन दिनों अगर मस्जिद बनाई है उन पे तो होना चाहिए उनको, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो बतौर आदमी असहाब अल कहफ जो थे वो थे ही नहीं उस दौर में, और ना उन्होंने उन पर मस्जिद बनाई, यानी उन्होंने भी इस आयत पर अमल नहीं किया होगा। अगर हमारे लोग कहते हैं कि हर आयत पर अमल किया, तो जाहिर है इस आयत के मुताबिक तो मस्जिद बनानी पड़ेगी असहाबे कहफ पे अमल करके दिखाने के लिए। दोस्तों, मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो तर्जुमा में लिखा है कि इनका रब इनको ज़्यादा जानने वाला है। इन लोगों ने कहा जो इनके मामले पर गालिब आए, ज़रूर बिल ज़रूर हम इन पर एक मस्जिद बनाएंगे। अब यहाँ इनके इस तर्जुमा से पता चला कि मस्जिद जो बनानी है वो असहाब अल कहफ पर बनाई जाएगी। तर्जुमा को देखें तो कहा जा रहा है इन पर मस्जिद बनाएंगे, यानी उन्होंने बनाई नहीं है, आने वाले दौर में बनाएंगे, क्योंकि तर्जुमा में बनाएंगे लगा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मुझसे कहो कि ये वाला काम फलाने दिन हम मिलकर करेंगे, यानी हमने किया नहीं है, आने वाले दिनों में वो किया जाएगा। या यूँ कहा जाए कि हम फलाने दिन वो वाली तहरीर लिखेंगे। दोस्तों, इसी तरह इनके तर्जुमा में भी बनाएंगे लिखा हुआ है, जो बता रहा है कि उन्होंने मस्जिद बनाई नहीं है, बल्कि आने वाले दौर में इसको बनाएंगे। अब ये जो तर्जुमा में लिखा है कि बनाएंगे, ये पता नहीं बनाएंगे कब पूरा होगा, क्योंकि जिसको हमारे यहाँ क़यामत कहा जाता है उस दिन भी ये बनाएंगे ही रहेगा। तब भी ये नहीं होगा कि बना दिया, बनाएंगे ही रहेगा। जबकि आपसे मैं शेयर करता चलूं कि एक नमाजी कुरानिस्ट जिसके हजारों में फॉलोअर है, वो अक्सर कहता है कि कुरान मजीद हर ज़माने की किताब है, लेकिन उसका एक लेक्चर मैंने असहाब अल कहफ पर सुना तो वो कह रहा था असहाब अल कहफ पर मस्जिद बनाई गई। अगर हम इसका ये बयानिया देखें कि कुरान मजीद हर दौर की किताब है, लेकिन असहाब अल कहफ को मार कर उस पर मस्जिद बनवा कर बैठा हुआ है ये। अब आप देखें कि कहता है कि असहाब अल कहफ जो है मरे हुए हैं उस पर मस्जिद है, जबकि अगर इसका ये बयानिया मान लें और जिस सऊदिया वाली मस्जिद के मुतअल्लिक वो कहता है कि इसके नीचे असहाब अल कहफ दफन है, वो इमारत तो माजी में बनी है, जबकि आयात हर दौर के लिए हैं। लिहाजा इसका अगर ये बयानिया मान लिया जाए तो हर दौर में असहाब अल कहफ बतौर आदमी होने चाहिए और हर दौर में इनके मुतअल्लिक झगड़ा जारी रहना चाहिए और इन पर इमारत और मस्जिद बननी चाहिए, यानी हर 10 साल बाद एक इमारत नुमा मस्जिद इन पर बननी चाहिए। लेकिन ये नमाजी कुरानिस्ट असहाब अल कहफ पर मस्जिद नहीं बना रहा, खुद भी नहीं बना रहा, जबकि दूसरी तरफ कहता है कि किताब हर दौर के लिए है, यानी इस मामले पर हवा में ही ये टट्टू दौड़ा रहा है, हवा में टट्टू दौड़ा रहा है, यानी अपने बयाने की खुद ही नफी कर रहा है, क्योंकि एक तरफ कह रहा है कि वो किताब हर दौर के लिए और दूसरी तरफ कह रहा है कि असहाबे कहफ पर मस्जिद बनाई गई थी। ओ भाई, जब किताब हर दौर के लिए तो असहाबे कहफ भी हर दौर के लिए होने चाहिए। आप खुद देखें ना कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर ये लोग मारते हैं। लिहाजा दोस्तों,
तर्जुमा में इन्होंने लिखा है कि ज़रूर बिल ज़रूर हम इन पर एक मस्जिद बनाएंगे। यहाँ गौर करने की बात ये है कि इस तर्जुमा के मुताबिक मस्जिद असहाब अल कहफ पर बनाने का कहा जा रहा है। आयत में वो कह रहे हैं, ना कि इनकी कब्र पर मस्जिद बनाने का कहा जा रहा है। ये दो अलग बातें हैं कि एक असहाब अल कहफ पर मस्जिद बनाना और दूसरी बात यह है कि उनकी कब्र पर मस्जिद बनाना। ये दो अलग अलग बातें हैं। दोस्तों, इस तर्जुमा में कहीं नहीं लिखा कि इनकी कब्र पर इमारत या मस्जिद बनाई जाएगी, और ना ही आयत के मतन में कहीं लिखा है कि उनकी कब्रों पर इमारत या मस्जिद बनाई जाएगी। जबकि सऊदीया में जो मस्जिद है वो कब्रों पर है या जमीन पर है, असहाब अल कहफ पर नहीं है। असहाब अल कहफ पर मस्जिद होने का मतलब ये होना चाहिए कि उनकी किसी की टांग, किसी के हाथ, किसी की छाती या किसी के सर पर या किसी के कंधों पर मस्जिद बनाई जाए या उनकी बॉडियों के ऊपर ईंटें रखी जाएं। बॉडी पड़ी हुई है मरे हुए बंदे की, उस पर ईंटें रख के, उनको फैला के उन पर ईंटें रख के मस्जिद ऊपर बनाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि कब्रों पर इमारत बनाई गई है। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि फलां ने अपने ऊपर वजन उठा लिया या अपने ऊपर वजन लाद रखा है, इसका मतलब ये होगा कि उसने वजन उठा रखा है अपने ऊपर, तो जाहिर है वजन या भार सर पर या कंधों पर उठा रखा होगा या जिम्मेदारियां निभा रहा होगा। इसी तरह अगर असहाब अल कहफ पर मस्जिद बनाने का कहा जा रहा है तो जाहिर है इनके ऊपर ही बनेगी, ना कि इनकी कब्रों के ऊपर। जबकि आप गौर करें, इसमें मरवजा मस्जिद वाला कोई काम हो भी नहीं रहा है। दोस्तों, आप देखें कि वो तो दरबार है, दरबार। अगर सऊदीया में मस्जिद नबवी के नीचे असहाब अल कहफ तो दरबार है। इसी तरह आप देख लें बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं, मसलन लाहौर में आप दाता साहब देख लें, इसी तरह आप देख लें मुल्तान में, उनके ऊपर भी गुंबद नुमा इमारत बनाई, दरबार है, दरबार है। लिहाजा वो दरबार तो हो सकता है, मस्जिद नहीं हो सकती। नाम दे दो आप जो मर्जी, उसको जो मर्जी नाम दे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिहाजा मस्जिद इमारत कब्रों पर बनाना और किसी फर्द पर बनाना दो अलग अलग चीजें हैं। मसलन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि वो कह रहा था नमाजी कुरानिस्ट कि असहाब अल कहफ पर मस्जिद बना दी, जबकि वो उनकी कब्रों पर है। असहाब अल कहफ पर नहीं है, वो उन पर तब बनती जब उनके सरों पर इमारत खड़ी की जाती, और या वो मुर्दे होते तो उनकी बॉडियों पर इमारत होती, लेकिन वो ऐसा नहीं, कब्रों पर है। लिहाजा दोस्तों, इस तर्जुमा में लिखा है कि मस्जिद बनाएंगे, लेकिन मस्जिद का तर्जुमा नहीं किया गया, और बनाएंगे ये आयत के किसी लफ्ज का तर्जुमा नहीं है, क्योंकि बनाने से मुतअल्लिक अल-किताबिल मुबीन लफ्ज जअला के बुनियादी लफ्ज की फैमिली से अल्फाज लेकर आती है, और इसी फैमिली का लफ्ज आयत में मौजूद ही नहीं है। मैं आयत लगा रहा हूं, गौर करें, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 125 है। इसमें जअलना के मानी हमने बनाया, इन्होंने खुद किए हैं, और लोग खुद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 125 में ताखीज़ु के मानी मुकर्रर कर लो करते हैं। मजीद सूरह 2 ही की आयत नंबर 80 में अत्ताखज़ के मानी तुमने ले रखा किया गया है इन लोगों की तरफ से, जबकि यही इसका असल मानी है। मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि सूरह अल कहफ की आयत नंबर 21 में ताखिज़न्ना आया है, इसका मसदर वही है जो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 125 और 80 में अत्ताखज़ और ताखिज़ू का है, जबकि कुछ
नमाजी कुरानिस्ट सूरा 2 की आयत नंबर 125 को लेकर कहते हैं कि यहाँ मानी अखज़ करना भी है। अगर हम इनकी ये बात मान लें कि सूरा 2 की आयत नंबर 125 में ताखीज़ु के मानी अखज़ करना भी है, तो फिर क्यों ये लोग सूरा अल-कहफ की आयत नंबर 21 में जाकर ताखीज़न्ना के मानी बदल देते हैं? वहाँ क्यों बनाना मानी कर देते हैं, बनाएंगे क्यों कर देते हैं, जबकि ये लोग खुद भी असहाब अल कहफ पर मस्जिद नहीं बना रहे, कोई भी नहीं बना रहा दुनिया पर, जबकि मस्जिद उन्हीं पर बननी है। जबकि आपसे जैसे मैंने शेयर किया कि एक नमाजी कुरान शोशा छोड़ के बैठा है कि वो सऊदीया वाली मस्जिद है जो असहाब अल कहफ पर बनी। ओ भाई, वो असहाब अल कहफ पर नहीं बनी, वो कब्रों पर बनी हुई है। और उनके नीचे मैंने जो पढ़ा है इधर उधर से, उसके मुताबिक तो कब्रें ही 3 हैं, उसके हाल में 3 कब्रें हैं। लिहाजा उस नमाजी कुरानिस्ट का कहना है कि उसमें कब्रें पता नहीं 7, 8, पता नहीं 9 ऐसे कुछ बता रहा था अपने लेक्चर में। लिहाजा दोस्तों, अब इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है बनु, इसके मानी तश्कील देना, तरतीब देना। इसके आम मानी बनाना से मुताल्लिक किए गए हैं। नंबर 2 पर है बुनियाना, इसके मानी ढांचा, इसके मानी आइन, इसके मानी दस्तूर और इमारत को भी कहा जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर इमारत है तो इमारत गारे, मिट्टी या बजरी या सीमेंट की जो बनाई जाती वही हो। मसलन हमारे मुआशरे में उर्दू अदब में कहा जाता है कि तुमने जिस झूठ पर इमारत बनाई है इसका कला कमा मैं करता हूँ। अब झूठ पर इमारत जो बनाई जाएगी वो गारे, ईंट, बजरी की नहीं होती। पॉइंट नंबर 2 है, ये भी कहा जाता है कि अपने तसव्वुरात की इमारत से बाहर निकलो। अब ये भी कोई गारे मिट्टी की इमारत नहीं है। नंबर 3 पर है तकवा की इमारत तो कुरान मजीद ही है, यानी कुरान मजीद का जो इल्म है वो तकवा की इमारत फराहम करता है, स्ट्रक्चर या ढांचा फराहम करता है। नंबर 4 पर है पाकिस्तान की इमारत उसका दस्तूर है, यानी पाकिस्तान जिस पर चल रहा है वो दस्तूर है, वो उसी ने उनको इमारत फराहम की है कि कैसे लेकर चलना है। लिहाजा इसी तरह हर मुल्क का जो दस्तूर होता है वो उसके लिए स्ट्रक्चर या इमारत होती है। दोस्तों, इस तरह भी लफ्ज़ इमारत का इस्तेमाल होता है। सूरा अल-कहफ में भी ऐसे ही इसका इस्तेमाल आया है। अगर कोई कहता है कि यहाँ इमारत गारे की या मिट्टी की जो बनाई जाती वो वाली है, तो मैं उससे कहता हूँ कि फिर इस आयत पर अमल करके दिखाएं मुझे। कैसे आप अमल करते हैं और कैसे असहाब अल कहफ पर इमारत गारे, ईंट, बजरी और मिट्टी की बनाते हैं। दोस्तों, इमारत गारे और ईंट बजरी की यहाँ है ही नहीं अल किताबिल मुबीन में, क्योंकि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, मुत्तकी, अल्लज़ीना इसम मौसूल है, ये पिछली आयत में मुत्तकीन के लिए है। मुत्तकीन वो लोग हैं जो गायब के साथ मानते हैं किसको? किताब को, क्योंकि ये आयत जो है सूरा अल बकरा की, ये आयत नंबर 2 के तसलसल में आई हुई है। लिहाजा पूरी की पूरी किताब की बेस ही बिल गैबी, गैब के साथ है। हमारे यहाँ इमारत बना के कहते वो जी फलां मस्जिद है, वहां चले जाओ। भाई, जब तक गायब के साथ किताब को मानोगे ही नहीं तो कैसे मुत्तकीन लिस्ट में शामिल हो जाओगे? हो ही नहीं सकते हो। मस्जिद लफ्ज़ पर मुकम्मल तफसील से लेक्चर नंबर 3 मैंने शेयर किया था, उसका जायज़ा आप ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा रहा हूँ। मस्जिद लफ्ज़ हालत नसब में है और सिफ्त भी है, और हालत नसब मफूल ही होती है। इसके मानी जो बनते हैं वो मैं आपसे यहाँ सिर्फ शेयर कर देता हूँ। तो इसके मानी है अपनाने का मकाम या अपनाने वाला मकाम या जगह, इसको कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है यकीन करने वाला मकाम या जगह, या इसका दूसरा तर्जुमा होगा यकीन करने का मकाम या जगह। पॉइंट नंबर 3 है मानने वाला मकाम या जगह, या इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है मानने का मकाम या जगह। दोस्तों,
अपनाने का मकाम या जगह हो, या यकीन करने का मकाम या जगह हो, या मानने का मकाम या जगह हो, ये अपनाने का मकाम हमारे लिए जो है वो आयात हैं। यानी अलकिताबिल मुबीन के अंदर आयात जो नंबर लगा के उनकी जगह बनाई गई है वो हमने अपना लेना है उनको वहाँ जाकर। इसी तरह यकीन करने का हमारे लिए जो मकाम है वो भी अलकिताबिल मुबीन के अंदर आयात की जो जगह बना दी गई है उस आयत पे जाके उसको अपना लेना है, वो हमारा मकाम है। इसी तरह मानने का मकाम वो भी अलकिताबिल मुबीन के अंदर आयात को उनका जगह या मकाम देकर रख दिया गया है, नंबर लगाकर उस पे जाना है और उस आयत को मान लेना है। इसी तरह यहाँ भी असहाब अल कहफ वाली जो आयत है उनको उनका मकाम नंबर लगा के बना दिया गया है, हमने वहां जाना है और असहाब अल कहफ वाली आयत को मानना है, अपनाना है। अपनाने वाला मकाम जो है हमारा वो यहीं पे रख दिया गया है नंबर लगाकर। दोस्तों अपनाना जो है वो यहाँ पर जो है वो असहाब अल कहफ की जो बातें हैं उनको जब हम अपना लेंगे तो वही आयत हमारे लिए मस्जिद हो जाएंगी। और ये भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि अपनाना जब हम उसको अपनाते जाएंगे तो उस पर उसकी तालीमात जो है जो इन आयात में रखी उन पर हमारी इमारत बनती जाएगी और वही इमारत जो है वो हमारे लिए मस्जिद अपनाने का मकाम होगा, वही हमारा नुक्ता नज़र होगा, हमारा ओपिनियन होगा, लिहाजा हमारे लिए वही मस्जिद होगा। लिहाजा इसी को कहा जाएगा असहाब अल कहफ पर मस्जिद बनाई या इमारत बनाई, या कहा जाएगा दस्तूर आयन नुक्ता नज़र पॉइंट ऑफ व्यू बनाया गया, ये कहा जाएगा, उसको इमारत कहा जाएगा कि असहाब अल कहफ पे हाजिर में बना रहा है या बनाई जा रही है या बनाता है। ये हाजिर में बनेगी, ये कोई बिल्डिंग नहीं है। अगर तो बिल्डिंग लेते तो फिर सदियों पहले बन चुकी, आप इस आयत पे अमल कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ते हैं तो सूरह अल कहफ की आयत नंबर 21 है। इसमें लिखा है कि वकज़ालिका असरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक्कम व अन्नस्साअता ला रैबा फीहा, जैसा कि वो हमने इन पर जाहिर किया ताकि वो जान लें कि कायनात को बनाने वाले का अहद व पैमान बिल्कुल हकीकी है और हकीकतन ख़ास घड़ी या ख़ास मौका, इसमें कोई उलझन या टेढ़ मेढ़ नहीं है। यानी कोई ख़ास घड़ी होती है या कोई ख़ास मौका होता है, उसमें कोई टेढ़ या उलझन होती नहीं, वो उसने आना ही आना होता है या आकर गुजर जाना होता है। इसी तरह अब कायनात बनाने वाले का जो अहद पैमान है वो हकीकत पर मबनी है। मजीद हम देखते हैं आयत का अगला फ्रेज, तो उसमें लिखा है इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू बुनु अलैहिम बुनयाना, जिस लम्हे इनके दरमियान इनके मामले में वो इख्तलाफ राय करते हैं तो उन्होंने बताया कि तुम इन पर एक ढांचा या एक आयन या एक इमारत तश्कील दो। यानी असहाबे कहफ पर ढांचा या आयन या दस्तूर या इमारत तश्कील देने का कहा जा रहा है। अब इमारत के मुतल्लिक मैं ऊपर आपसे मिसालें पेश कर चुका हूँ, अगर तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि असहाब अल कहफ पर इमारत बनानी तो जाहिर है ईंट बजरी गारा उनके ऊपर कंधों पर या सरों पर या बॉडी पर या पेट पर या टंगों पर रख कर एक कमरा बनाना पड़ेगा, एक कमरा बनाना पड़ेगा। जबकि इस आयत में या कहीं भी ये नहीं लिखा कि उनकी कब्रों पर इमारत बनेगी। असहाब अल कहफ पर इमारत इनके तर्जुमे के मुताबिक बनाने का कहा जा रहा है और असहाब अल कहफ जो है वो अल किताबिल मुबीन में मेंशन है। जैसा कि मैंने कहा उनसे जो हमारा व्यू बनेगा, हमारा जो ढांचा या बॉडी या आयन या दस्तूर बनेगा, वो हमारी इमारत होगी और वो हम बनाएंगे।
ہم خود بنائیں گے، آج حاضر میں بھی بنائیں گے ان پر۔ لہٰذا دوستو آیت کا اگلا فریز کچھ یوں ہے، ربہم اعلم بہم، ان کو پالنے والا وہ ان کے ساتھ زیادہ جانکاری دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ بہم، اصحاب کہف کے ساتھ جانکاری دینے والا ہے، یعنی جو ان کے ساتھ جانکاری ملے گی، جانکاری مل رہی، آپ کی عمارت بن رہی ہے، ڈھانچہ دستور آئین بن رہا ہے۔ لہذا دوستو یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ ربہم عالم بہم، ان کو پالنے والا وہ ان کے ساتھ زیادہ جانکاری دینے والا ہے۔ اصحاب الکہف کے ساتھ جانکاری جو دی جائے گی وہ عمارت بن رہی ہوگی، دستور یا آئین یا ڈھانچہ بن رہا ہوگا جیسے جیسے معلومات ملتی جائیں گی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا فریز، تو اس میں لکھا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، بتایا ان افراد نے جنہوں نے اصحاب الکہف کے معاملے میں عبور حاصل کیا۔ یہ ان کے معاملہ کہاں ہے اصحاب کہف کا؟ وہ الکتاب المبین میں ہے۔ اس پر عبور حاصل ہوگا تو پھر بتایا جائے گا، کیا بتایا جائے گا؟ کہ ان کے ساتھ جو جانکاری ہے اس پر عمارت بنے گی، اس پر دستور آئین ڈھانچہ بنے گا۔ عمارت کا مطلب ہی یہاں پر یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ زیادہ جانکاری دے گا رب، اس پر جو آپ کا ویو بنے گا وہ آپ کی عمارت ہے۔ مزید یہاں پر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، قال الذین غلبوا علی امرہم، بتایا ان افراد نے جنہوں نے اصحاب الکہف کے معاملے میں عبور حاصل کیا۔ عبور حاصل کرنا ہے اصحاب الکہف کے معاملے میں، اور معاملہ الکتاب المبین میں ان کا، اور اس معاملے میں عبور حاصل کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے۔ مزید یہ کہہ کر کے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ضرور بالضرور ہم ان پر ایک اپنانے والا مقام یا جگہ، یا ماننے والا مقام یا جگہ، یا یقین کرنے والا مقام یا جگہ لیتے یا پکڑتے ہیں۔ دوستو اصحاب الکہف آیات میں ہے، آیات ہی وہ جگہ ہے جن پر جا کر ہم اپنانے کا مقام یا ماننے کا مقام یا یقین کرنے کا مقام لیتے یا پکڑتے ہیں۔ لہذا اصحاب الکہف کی جتنی بھی آیات ہیں ان کی وہی جگہ ہے، لہذا وہ آیات ہمارے لیے مسجد ہیں، اپنانے والا مقام ہے۔ جب ہم ان کو اپنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مسجد بن جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے اپنانے کا مقام یا جگہ، یا ماننے کا مقام یا جگہ، یا یقین کرنے کا مقام یا جگہ کہاں سے پکڑنا ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس پر آپ جواب دے سکتے ہیں کمنٹ میں آ کے۔ میرا تو یہ جواب ہوگا کہ مجھے آیات سے ہی اپنانے کا مقام یا اپنانے کی جگہ یا ماننے کا یا یقین کرنے کا مقام یا جگہ وہ آیات میں رکھ دی گئی، وہیں سے پکڑنا ہے، اور وہی میرے لیے مسجد یعنی اپنانے والا مقام ہوگا یا ماننے والا مقام یا جگہ ہوگی آیات ہی۔ لہٰذا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ضرور بالضرور ہم ان پر ایک اپنانے والا مقام یا اپنانے والا جگہ یا ماننے والا مقام یا یقین کرنے والا مقام یا جگہ لیتے یا پکڑتے ہیں۔ لہٰذا یہ جگہ جو ہے وہ الکتاب المبین کے اندر آیات کی صورت میں آیت پر جائیں، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اسے اس جگہ پر جا کر پکڑ لینا ہے۔ جب پکڑ لیں گے تو وہ ہمارے لیے مسجد یعنی اپنانے والا مقام یا اپنانے والی جگہ وہ آیات میں ہی ہے، کیونکہ نمبرنگ وہاں لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔